قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم، ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نزہت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے وہاڑی سے، جہاں پر سیوریج کا گندا پانی پھیلنے سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ڈسٹرکٹ وہاڑی کے علاقے مرکزی ڈھینگی میلسی ایک کنال روڈ والی گلیوں میں سیوریج سسٹم ناکارہ، مین لائنیں بند، سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ تعفن اور بدبو ہونے کی وجہ سے مچھروں کی افزائش سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ شہری رانا جاوید اشرف، مرکزی صدر تاجران کمیٹی اڈا ڈھینگی، ڈاکٹر محمد معظم غفار جویا، میاں محمد رمضان، صدر کریانہ سٹور ایسوسی ایشن ڈھینگی، محمد ندیم جاوید، پیسٹی سائیڈ گروپ، حافظ راؤ جاوید اقبال، صدر پیسٹی سائیڈ ڈھینگی، عبدالرشید گل، صدر لوہا مارکیٹ، اقبال بھٹی، سینئر صحافی، سرپرست اعلیٰ پریس کلب ڈھینگی، طارق حسین بھٹی، محمد رفیق مغل، سینئر صحافی محمد آصف خان کھچی، گلفام ندیم بھٹی، ڈاکٹر خالد حسین الادتہ، انصاری راؤ محمد اشرف، محمد امجد بندیشہ اور تاجر کمیونٹی امن کمیٹی، مساحلتی کمیٹی، اہل علاقہ نے کہا ہے کہ سیوریج کے گندے پانی سے ہمارا جینا محال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی، اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی، اراکین قومی اسمبلیوں سے نوٹس لے کر سیوریج سسٹم اور ڈھینگی موڑ والا روڈ بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ڈسٹرکٹ وہاڑی سے محمد معظم کی رپورٹ کے مطابق، جہاں پر مختلف دکانوں کو سیل کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کی میڈیکل سٹورز، ہوٹلز، بیکریز اور گیس ری فلنگ کی دکانوں پر چھاپے، انہوں نے گیس ری فلنگ کی دکانوں کو سیل کر دیا، جبکہ دوران چھاپہ میڈیکل سٹورز پر فارمسٹ موجود ہی نہیں تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد نے بیکریز میں اشیاء کی قیمتوں، معیار اور مقدار کا معائنہ کیا اور ہوٹلز پر روٹی کے وزن اور نرخ بھی چیک کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق ایم سی ماڈل ہائی اسکول کی عارف بازار میں واقع مردانہ کیمپس بھی گئے، جہاں انہیں پرنسپل چودھری خالد مجید اور دیگر اساتذہ سے ملاقات کرتے ہوئے اسکول کا وزٹ کیا، جہاں پر پرنسپل کی جانب سے انہیں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کا کہنا تھا کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے میں ہر لمحہ خود نگرانی کر رہا ہوں، کسی بھی انتظامی عمل میں کوتاہی یا قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں۔ دفتر میں بیٹھ کر سب اچھا سن کر بیٹھنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ شہر کے ہر حلقہ اور شعبے کی خود نگرانی جاری رکھوں گا۔ جہاں قانون شکنی یا انتظامی جرم نظر آیا، بلا تفریق ایکشن ایسے ہی جاری رہے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد نے ملتان روڈ پر واقع پاک مدینہ میڈیکل سٹور کا جب وزٹ کیا تو ادویات، سبزیوں کی مانند فرش پر بکھری پڑی تھیں۔ انہوں نے سٹور میں موجود عملے سے اس سلسلے میں باز پرس بھی کیا۔ آگے بڑھیں گے اور یہاں بھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے، جہاں پر پنجاب حکومت کی ایک اور اہم کامیابی، اب پنجاب حکومت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شراب کے پرمٹ بائیو میٹرک کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں، پنجاب حکومت کی ایک اور اہم کامیابی، مریم نواز وزیر اعلیٰ کی پنجاب حکومت نے جو کہا اس پر عمل کر دکھایا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شراب کے پرمٹ بائیو میٹرک کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شراب کے پرمٹ بائیو میٹرک کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لاہور سے ہمارے بیورو چیف لاہور عظیم چودھری سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب حکومت نے اپنا ایک اور وعدہ سچ کر دکھایا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شراب کے پرمٹس کو بائیو میٹرک کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت کی ایک بڑی کامیابی، شراب مافیا کو لگام ڈالنے کی تیاری ہو گئی۔ اب ہر پرمٹ ہولڈر بائیو میٹرک کے ذریعے ہوٹل سے اپنا انگوٹھا لگا کر شراب وصول کرے گا۔ تمام بوگس پرمٹ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر پرمٹ پر پرمٹ ہولڈر کی تصویر چسپاں ہوگی اور وہ اپنی بائیو میٹرک تصدیق سے ہی ہوٹل سے شراب وصول کر سکے گا۔ شراب اور جعلی پرمٹ مافیا کو پریشانیاں لگ گئیں، ہر طرف دوڑیں۔ جی بہت شکریہ عظیم چودھری، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے گجرانوالہ سے لالا عمران کی رپورٹ کے مطابق، عزم استحکام کوئی آپریشن نہیں، قومی ایکشن پلان کا ہی تسلسل ہے۔ وزیر اعظم نے اے پی سی میں سب کے تحفظات سنے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں کہا کہ کے پی کے بعض علاقوں میں تھانے رات 8 بجے بند ہو جاتے ہیں، وہاں پر ٹی ٹی پی والے آ جاتے ہیں۔ بتائیں احکامات ایسے ہوں تو اس کا کیا حل ہے؟ ملک میں معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔
9 मई रियासत पर हमला है। 1.5 साल हो गया है, रियासत को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। जेहलम में एक केस का फैसला 20 साल बाद हुआ तो पता चला कि फैसला आने से पहले मुलजिम को सजाए मौत हो चुकी थी। मेरे नुक्ता नज़र में हमारे अदालती निज़ाम से फौजी अदालतें बेहतर हैं। इस हवाले से ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अदल की, तो अदल के मामले में जो सैयदना उमर और सैयदना अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस उम्मत को दिया है, उसमें ये नहीं है कि जुर्म जो है वो तो हो 10 साल पहले और फैसला है 20 साल बाद। क्या आपके ये जेलम में आप ही ने नशर किया ना कि अदालत ने 20 साल बाद बाइज्जत बरी किया, पता चला 2 साल पहले उसको फांसी हो गई थी। और जो 9 मई की बात आती है, हम सब ने कई बार उसकी मजम्मत भी की है, वो रियासत के ऊपर हमला है। ये कोई भी करे, ये छोड़ दे पार्टी कौन सी है, अगर कल मैं करूं तो मैं भी, देखिए ये इदारे जो होते हैं आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये इदारे आपके और मेरे तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन हैं। ये फ़ौज मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। तो मुझे बताएं कि जब 1.25 साल गुजर गया है, रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आपका एतराज़ फौजी अदालतों पे क्या रहेगा? वो तो फिर भी मेरा अपना ख्याल है, ये ज़ाती नुक्ता नज़र है मेरा, कि ये जो हमारा मौजूदा अदालती निज़ाम है पूरा ओवरहाल, इससे फौजी अदालतें ज़्यादा बेहतर इंसाफ दे सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर एक इजलास बुलाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए 32 KPIs पर अमल दरामद के बारे में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर ने KPI परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर तमाम महकमों की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग ली। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म, नान, रोटी और आटे की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। DC मोहम्मद नईम सिंधु ने कहा है कि सुथरा पंजाब मुहिम की कामयाबी के लिए अमली इकदाम किए जाएं। तमाम डिपार्टमेंट शजरकारी का टारगेट 15 जुलाई तक मुकम्मल करें। असिस्टेंट कमिश्नर हर तहसील में 20,000 पौधे लगाए। हेल्थ डिपार्टमेंट 20,000, एजुकेशन 20,000, हायर एजुकेशन 6,000, 500 लाइफ स्टॉक 3,000 पौधे लगाएंगे। नकासी आप मसाइल के खात्मा, तजावुजात के खिलाफ मुहिम, खराब स्ट्रीट लाइट्स तब्दीली, पार्क्स की हालत संवारने के लिए इकदाम किए जाएं। आवारा कुत्तों की तल्फी, कब्रिस्तानों की सफाई, गटरों के टूटे ढक्कनों की तब्दीली, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के बारे में अमली इकदाम किए जाएं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे कोट मिठन से। राव मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर मुहर्रमुल हराम के बाद मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया गया है। सरबराह सराइकिस्तान तहरीक ख्वाजा गुलाम फरीद कोरेजा का 10 मुहर्रम के बाद मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। इस बात का इजहार कोट मिठन में हमारे नुमाइंदे राव मंजूर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। कोट मिठन में झोंक फरीद में सरबराह सराइकिस्तान कौमी मूवमेंट ख्वाजा गुलाम फरीद गोरेजा ने 10 मुहर्रम के बाद मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। एहतजाज कोट मिठन को तहसील के दर्जा पर बहाली, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को दोबारा मुल्तान शिफ्ट करने के लिए किया जाएगा, जो कि दोबारा लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है। मजीद उनका कहना था कि हम इंशाअल्लाह अपने सराइकी इलाके के लोगों के हकूक की जंग हर मुमकिन हद तक लड़ेंगे और इसके लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे चनियोर से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर थाना रजौआ चोरों को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। थाना रजौआ में चोर मस्त हाथी की तरह दंदनाने लगे। शरीफ शहरी लाखों रुपए मालियत के जानवरों से महरूम, थानेदार चोरों को पकड़ने में बेबस हैं। चनियोर थाना रजौआ के इलाके में अकबर नामी शख्स की 2 दफ़ा चोरी होने पर 9 कीमती जानवरों से महरूम हो गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 1 साल कबल 4 बकरियां चोरी हुई, जिसका थाना रजौआ ने मुकदमा तक दर्ज न किया, जबकि 2 माह कबल 5 कीमती बकरियां चोरी हुई, जबकि मुकदमा दर्ज और मुलजिमान की निशानदही होने के बावजूद थानेदार एजाज काजी सियासी असर की वजह से मुलजिमान को गिरफ्तार करने और माल बरामद करने से कासिर हैं। अकबर खान का मजीद कहना था कि तफ्तीशी को चोरों का इल्म होने के बावजूद ना पकड़ रहा है और ना ही माल बरामद कर रहा है, जबकि मुतासिरा शख्स ने DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद, RPO फैसलाबाद, IG पंजाब और वज़ीर आला से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और माल मवेशी बरामद किए जाएं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे चनियोर से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर मंशियात के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है।
एडिशनल सेशन जज इम्तियाज नदीम ने मंशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मंशियात फरोशों को कैद और भारी जुर्माने की सजाएं सुनाई दी गईं। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोशों सदर अब्बास हक नवाज को उम्र कैद की सजाएं सुना दी। अदालत ने मंशियात फरोशों को 8-8 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं भी सुनाई। SHO थाना सिटी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान के कब्जा से 1 मन से जायद अफीम बरामद हुई थी। मियारी तफ्तीश के साथ सबूतों को बेहतरीन अंदाज में अदालत के सामने पेश करके मंशियात फरोशों को सजा दिलवाई गई। DP अब्दुल्ला अहमद ने कहा है कि इंसदादे मंशियात के लिए जिला भर में पुलिस आगाही मुहिम समेत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। अपने जवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अमली इकदाम करते हुए मंशियात का खात्मा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे MLC से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी MLC के दफ्तर जिना हॉल में खुली कचहरी लगाई और फर्दन साइलिन के मसाइल सुनकर हल के लिए इक़दाम जारी किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि तमाम महकमे अवामी मसाइल को हल करने के लिए हमा वक्त कोशा रहें। खुली कचहरी का मकसद शहरियों की सरकारी अफसरान तक रसाई को आसान बनाना है ताकि उनके मसाइल और शिकायत को बराह रास्त सुनकर फौरी अजाला किया जा सके। अफसरान अवामी मसाइल और शिकायत को हल करने पर खुसूसी तवज्जो दें। इस हवाले से किसी किस्म की ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि साइलिन को दफातर के बाहर चक्कर ना लगाना पड़े। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर MLC तारिक महमूद, DSP नदीम इकबाल, MSTHQ अस्पताल, CO बल्दिया, दीगर महकमों के अफसरान और साइलिन की कसीर तादाद मौजूद थी। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर पंजाब की जेलों में मंशियात के मुकदमात में मुलव्विस असीरान की उनके लवाहिकीन से एडमिन ब्लॉक में मुलाकात पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। अवामी हलकों से पंजाब की जेलों में मंशियात की दस्तयाबी की शिकायत की मसूली के पेश नज़र मंशियात के मुकदमात में मुलव्विस असीरान की उनके लवाहिकीन से एडमिन ब्लॉक में मुलाकात पर होम सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। जैसा कि बदनाम जमाना मंशियात फरोश जेलों के अंदर मंशियात स्मगल करने के लिए सरगर्म हैं और जेलों में मंशियात सप्लाई का एक अहम जरिया एडमिन ब्लॉक में असीरान के साथ फिजिकल मुलाकात को समझा जाता है, जो कि महकमे के लिए बदनामी का बाइस है। आज जेल खाने जाग पंजाब मियां फारूक का कहना है कि मंशियात के मुकदमात में मुलव्विस असीरान की एडमिन ब्लॉक में मुलाकात पर पाबंदी आयद से न सिर्फ मंशियात फरोशों और मंशियात की आदि असीरान की हौसला शिकनी होगी, बल्कि जेलों के अंदर ममनुआ अशिया बशमूल नशा आवर मवाद को भी रोका जा सकेगा, जिससे सिक्योरिटी निजाम में भी बेहतरी आएगी। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।